Hi guys, so today I'll tell you about OSI model. Okay, so OSI model or OSI layers. So basically what does it mean is it basically means the transfer of your data from or the basically data journey when when you search something on your computer or your desktop or your Google Chrome, then that data supposedly on your laptop you search google.com, so within fraction of seconds you get your result like a HTML template of google.com HTML template. But between that, in that fraction of seconds, the data is transferred through, data is being gone through a journey of steps, and that is what basically is a OSI model or OSI layer. So basically, so when you search a google.com, so basically data is being gone through seven different layers in your device and in total, and these seven layers are basically known as OSI layers. So I'll just tell you about each layer individually. So, so firstly, uh, the basically the journey or the data journey is known as data journey overall is in total known as OSI model or OSI layers. Now, once you search it in your laptop, okay, so even before your data and OSI layer starts, there is two steps that is being done before this data uh, journey starts. There is just two things. First is first was DNS resolution, and second is TCP handshake. TCP handshake. Now basically, and after that, data initiation starts. After that, data initiation starts. Now, what DNS resolution is basically every domain name has some IP address attached to it. Supposedly, it's google.com. So DNS is basically domain name service. So every IP address is being assigned to a every domain is being assigned to a IP address. IP address. So so what happens is basically when you search google.com, what before data initiation, what happens is firstly your laptop or your device firstly checks your local cache for the DNS, for the IP address, or the IP address. And from where does this, if supposedly you're for the first time you're searching google.com, then what happens is your ISP, every ISP, which is internet service provider, internet service provider. Now every ISP have a DNS attached to it. Have a DNS attached to it. So what it does is it has every DNS has this table in which it has every domain name and some IP address attached to it, IP and DNS. So what happens is supposedly search google.com, so it goes your device goes to the ISP and check and ask for ISP about your IP address. So IP address basically is something for google.com, suppose it's 8.8.8.8. So what happens is your your internet service provider gives the ISP, and then it get the IP is being given to your device. Now there's one more thing, TCP handshake. T TCP handshake. Now what this thing is, supposedly you have your laptop here and this is your server.
server. So before the data goes to the server or the request goes to the server, the device of yours sends a request to the sends a type of a message, says sync. So it sends to the server, and then the server again, it's a three-way handshake. Three-way handshake. Then the server again sends a message saying sync acknowledge. Acknowledge. And then the laptop says the last message, which is says acknowledged. Acknowledged. Now once all these three steps are done, then after this data initiation or the OSI layer starts. Data initiation starts. So basically, in when you talk about OSI layers, so basically you take care, you think that DNS resolution and TCP handshake is being done. Then the data initiation starts. Now, what it is basically you send a you search for google.com in your laptop, and then you get a basically the Google homepage. Now, in between all the things which happens is basically the OSI layers. There are seven layers, seven layers. So it starts from first is application layer. Then there is this presentation. Then there is this session. Then it comes the uh, after session layer, it is transport layer, and then there is this network layer, and the last two are data link layer, and last is physical layer. Now the data transfers from each layer, from application to presentation, then from presentation to session, then transport, then network, then data link layer, and then physical layer. And then the data is being sent to the server. And then again it is being sent back from the server, the result. So basically, supposedly, this is your two devices. This is your user, and this is your server. Or supposedly it could be anything, even could be a two WhatsApp text supposedly is also takes place. Anything you send to a different device is basically gone through these OSI layers. So supposedly you are a user and you send a message to another user or another user. Then the what happens is your message send goes through application to presentation and till the physical layer, and from physical layer the data is transferred to the another user, and from there it doesn't directly go to the application layer. From then it goes to the physical layer, then from physical to data link. Then in this way the data is being transferred, and at the end the application layer shows you the data. From here you the data transfers like this, and in the user's desktop it transferred like this. So let's talk about first application layer. Application layer. So it is basically the user interface layer. What do you mean by user interface layer is it basically act as user interface. Now supposedly you want to see, so you search on your laptop google.com, so you basically see the web page of google.com as this HTML web page of google.com. So all those things that you see on your laptop is basically lies under lies under application layer. You search or you send a text via WhatsApp and you receive the text, you receive the reply, and you see it on your WhatsApp under the chat. Then that is WhatsApp, and everything that is all things lies under
application layer. Now basically application layers is the starting when you send a message. So you send a message, say hi to your friend. So you send hi to your friend, then that message is lies under application layer, and then the hi is being sent to the presentation layer. Now this is the first layer that we have discussed. Now let's talk about presentation layer. Presentation layer. Basically, there are three things that happens here. Three things. One is conversion, one is encryption, and one is what do we call it? A compression. Compression. So these things, these three steps happen in this. So basically, the code that the message that hi that you have written is basically in human understandable form. So firstly, it converts your human understandable the message or anything the data from human understandable form to machine understandable form. Machine understandable form. Then once, because the machine won't understand a hi, so it converts the data from human understandable form to machine understandable form. Secondly, it encrypts your data. Basically, encrypts to your data means that the data which you're sending is being encrypted, and it will only be decrypted by the users, another user to which the data has to be received. तो यहाँ पे encryption हो जाएगा कि जो भी डेटा है वो सपोजिटली आपका व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप पे क्या होता है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन होती है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन। एनक्रिप्शन तो उसमें क्या होता है कि आपने हाय भेजा तो वो मैसेज एक सीक्रेट फॉर्म के में आपने यूजर ने हाय भेजा तो वो एक जो रिसीवर है उसको एक हाय मिलेगा, पर जो इसके बीच में है यहाँ पे कोई भी उस हाय को एक्सेस नहीं कर सकता, कोई भी उस मैसेज को पढ़ नहीं सकता। यहाँ जाके वो डिक्रिप्ट होगा और इस रिसीवर को हाय दिखेगा। तो ये होता है एनक्रिप्शन। तो आपका जो भी डेटा है वो सब वो एनक्रिप्ट हो जाता है यहाँ पे। थर्डली कंप्रेशन। अब ये बेसिकली कंप्रेशन मीडिया फाइल्स के लिए होता है। मीडिया फाइल्स एज इन तुमने कोई फोटो भेजी हो या कोई भी वीडियो भेजी, तो उसके लिए क्या करता है कि ये जो मीडिया फाइल्स होती है उसको कंप्रेस कर देता है, उसका साइज बेसिकली कंप्रेस कर देता है, रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस द साइज, रिड्यूस साइज। तो ये बेसिकली ये तीन स्टेप्स प्रेजेंटेशन लेयर करती है। फर्स्टली मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आपका डेटा कन्वर्ट करती है। सेकेंडली जो डेटा है उसको इनक्रिप्ट कर देती है। आप एंड टू एंड इंक्रिप्शन जैसे व्हाट्सएप पे आप देख सकते हो एंड टू एंड इंक्रिप्शन लिखा होता है। व्हाट इट मीन्स इज कि आपने हाय भेजा तो जो डेटा है अपने बीच की जर्नी में किसी को वो मैसेज कोई इनक्रिप्ट या पढ़ नहीं पाएगा अनटिल अनलेस वो मैसेज रिसीवर के पास पहुंच गया। तो ये हो गई प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का यही तीन स्टेप काम होता है। उसके बाद जब ये तीन चीजें हो जाती है तो वो अपना जो डेटा है वो नेक्स्ट स्टेप पे भेज देती है, नेक्स्ट स्टेप पे चले जाता है। और जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सेशन लेयर। सेशन लेयर। अब जो सेशन लेयर है ये क्या होता है कि सेशन लेयर क्या काम करती है आपका बेसिकली इसके दो स्टेप्स होते हैं सेशन लेयर में। एक होता है डायलॉग डायलॉग कंट्रोल और एक होता है टोकन मैनेजमेंट। इसमें बेसिकली ये दो स्टेप्स फॉलोड होते हैं। अब ये क्या होता है, सपोजिटली सपोजिटली आपने अपने गूगल पे अपने एफ बी facebook.com पे आप गए, तो आपको सबसे पहले जब आप फॉर द फर्स्ट टाइम तो आप जब फर्स्ट टाइम facebook.com पे जाते हो तो वो आपसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगता है। पर आप अगर 20 मिनट्स बाद आप सेकेंड टाइम facebook.com पे जाओगे और कोई और न्यू टैब में खोलोगे तो फेसबुक की आईडी जो आपकी होगी वो लॉग इन होगी अनलेस एंड अनटिल आपने लॉग आउट नहीं करी हो। और आप बंद करोगे तो facebook.com पे आप जाओगे 20 मिनट्स बाद तो भी वो facebook.com लॉग इन होगा, वो लॉग इन आईडी और पासवर्ड नहीं मांगेगा। तो उसका मतलब ये होता है, तो जो आपका क्रेडेंशियल्स है
क्रेडेंशियल्स है वो उन्होंने सेशंस के फॉर्म में स्टोर करा दिए हैं, सेशंस के फॉर्म पे स्टोर हो गए। तो बेसिकली ये होता है सेशन में। अब डायलॉग कंट्रोल और टोकन मैनेजमेंट क्या करता है, जैसे आपने हाय भेजा व्हाट्सएप पे यूजर ने रिसीवर को, तो डजेंट मीन कि रिसीवर को ऑनलाइन होना ज़रूरी है। अगर ये ऑफलाइन है और इसका नेटवर्क भी नहीं है, नेट भी ऑफ है, तो क्या होगा कि यूज़र यहाँ से अपना हाय भेजेगा और वो रिसीवर के फ़ोन की जगह वो एक सर्वर के पास चले जाएगा और वो सर्वर उसको टोकन दे देगा इन द फॉर्म ऑफ टोकन, विल गिव टोकन इन द फॉर्म ऑफ सेशंस। तो जब ये यूज़र ऑनलाइन आएगा तो तब वो उसके उस डिवाइस पे मैसेज शो हो जाएगा। तो बेसिकली ये होता है। तो अब ये जब अगर ये ऑफलाइन और इसने हाय भेजा तो ये सर्वर देखेगा और ये देखेगा कि कौन सा सर्वर को भी फ्री होना चाहिए। अगर सर्वर फ्री नहीं है तो वो इसका हाय ले नहीं रखेगा, तो सर्वर हाय नहीं ले सकता। तो व्हाट इट डज इज, सपोजिटली योर सर्वर इज नॉट फ्री, तो व्हाट इट डज इज इट फाइंड्स अनदर सर्वर टू सेंड और टू स्टोर द डेटा। अब जब इसने जो फ्री डेटा जो फ्री सर्वर है उसको ढूंढने का जो प्रोसेस होता है, फाइंडिंग द फ्री सर्वर टू स्टोर द डेटा और टू स्टोर द मैसेज और डेटा इन द फॉर्म एंड रिसीव द टोकन इन द फॉर्म ऑफ सेशन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायलॉग कंट्रोल। तो ये प्रोसेस होता है, ये सर्वर को ढूंढेगा, फ्री सर्वर देखेगा, सर्वर को डेटा देगा और डेटा देने के बाद टोकन मिल जाएगा इसको इन द फॉर्म ऑफ सेशन। तो जैसे ही ये ऑनलाइन आएगा आपका रिसीवर, वैसे ही उसके फ़ोन पे मैसेज चले जाएगा। तो ये होता है आपके सेशन कंट्रोल में। अब बेसिकली ये जो 3 स्टेप आपको बताया, ये 3 स्टेप्स ये ब्राउज़र कंट्रोल करता है। ब्राउज़र कंट्रोल ये आपके लैपटॉप पे होते हैं, आपके ब्राउजर पे होते हैं, गूगल क्रोम, आप जिस भी व्हाट्सएप या जिस भी आपके ब्राउजर पे आप काम कर रहे हो, सपोजिटली आप गूगल क्रोम पे काम कर रहे हो, तो गूगल क्रोम पे तो ये जो 3 स्टेप्स फॉलोड होते हैं ये गूगल क्रोम पे होता है। ये वेब ब्राउजर पे या वेब ब्राउजर लेवल पे स्टेप्स फॉलोड होते हैं, वेब ब्राउजर लेवल पे ये स्टेप्स फॉलोड होते हैं। अब जब इसके बाद जब आप 4th लेयर पे जाते हो, अब जब ये 3 स्टेप्स हो गए, अब ये 3 स्टेप्स होने के बाद जो 4th स्टेप पे आपका डेटा भेज देता है या 4th स्टेप पे डेटा चले जाता है। अब 4th स्टेप जो 4th स्टेप है वो है नेटवर्क। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 4th स्टेप है ये है 4th स्टेप है ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क 5th है। जो 4th स्टेप है वो है ट्रांसपोर्ट, लेयर। स्टेप बोल सकते हो, लेयर बोल सकते हो, कुछ भी। तो ट्रांसपोर्ट लेयर, तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, जो भी आपका डेटा है और इनक्रिप्टेड डेटा है इसको सेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिफरेंट सेगमेंट्स और डिफरेंट डेटा यूनिट्स में। बेसिकली डेटा को ब्रेक डाउन करती है सेगमेंट्स या फिर डेटा यूनिट्स में। और डेटा यूनिट्स कुछ इस टाइप से होते हैं कि ये आपका एक सपोजिटली ये आपका एक बहुत बड़ा डेटा है, इसको ये अलग अलग सेगमेंट्स में या फिर डेटा यूनिट्स में ब्रेक डाउन करती है और ब्रेक डाउन करती है। अब बेसिकली जो ईच डेटा यूनिट है ये आपकी एक सपोजिटली डेटा यूनिट है, इसमें 3 चीजें स्टोर होती है। एक होती है सीक्वेंस नंबर इज इन द डेटा, जो आपका सीक्वेंस में ब्रेक डाउन हुआ है वही सीक्वेंस नंबर उसको दिया जाता है। सेकेंडली सोर्स एंड डेस्टिनेशन नंबर जिस सीक्वेंस में आया है उसी सीक्वेंस में वहाँ सोर्स पे भी ब्रेक डाउन हुआ है और उसी सीक्वेंस में डेस्टिनेशन पे भी ये वो लगेगा, तो वो नंबर दिया जाता है। और थर्डली डेटा यूनिट, मतलब एज इन एक डेटा यूनिट, इसको इन टोटल इसको ये चीज़ें बोला जाता है।
अगर आप यहाँ पे ना लिखना चाहते तो आप यहाँ लिख दो एक ये डेटा। तो ये इन पैकेज ये इन टोटल एक डेटा यूनिट होती है, और इसको एक बड़े डेटा को ऐसे छोटी छोटी डिफरेंट सेगमेंट्स में ब्रेक डाउन किया जाता है डेटा यूनिट में, और हर डेटा यूनिट में ये अलग अलग डेटा ये इन द फॉर्म ऑफ दीज टू थिंग्स हर डेटा यूनिट को स्टोर कराया जाता है। अब इसका अलावा इसका एक और काम होता है फ्लो कंट्रोल देखना। इस लेयर में फ्लो कंट्रोल देखा जाता है। फ्लो कंट्रोल व्हाट इट मीन्स है, सपोजिटली आपका सर्वर है जो आपको 50 एमबीपीएस की स्पीड से डेटा भेज रहा है, स्पीड से डेटा सेंड कर रहा है आपको, और जो आपका डिवाइस है वो 10 एमबीपीएस की स्पीड से डेटा डेटा प्रोसेस कर सकता है। तो अब इसमें एक अनबैलेंस स्पीड हो गई है, तो इसके अंदर की सर्वर तो बहुत स्पीडली भेज रहा है पर डिवाइस आपका प्रोसेस कर नहीं पा रहा है। तो तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर वो एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराती है, फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है। अब वो फंक्शनैलिटी में क्या होता है, इट बेसिकली व्हाट इट डज इज इट स्लोज डाउन द सर्वर स्पीड, और वाइस वर्सा इट कुड डू। तो व्हाट इट मीन्स इज 50 एमबीपीएस से सर्वर आपको भेज रहा है, तो व्हाट इट डज इज इट विद दिस फंक्शनैलिटी वो आपको 10 एमबीपीएस से स्पीड भेजेगा। सर्वर सर्वर 10 एमबीपीएस से भेजेगा, जितने आपकी डिवाइस की प्रोसेसिंग स्पीड है उतनी ही स्पीड से सर्वर आपको ये भेजेगा, और ये 10 एमबीपीएस से आप प्रोसेस कर सकते हो। तो बेसिकली ये फ्लो कंट्रोल जो होता है डेटा का वो हैंडल करता है। एक और चीज हैंडल करता है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल क्या होता है, अब जैसे ये डेटा ट्रांसफर हो रहा है बहुत सारा, तो जो छोटा छोटा डेटा कभी कभार लॉस हो जाता है, या डेटा लॉस या डेटा लॉस्ट हो जाता है, तो बेसिकली व्हाट इट डज इज चल नहीं रहा। ओके, सो बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली runs a data scheme. तो it runs a automatic data scheme, ऑटोमेटिक डेटा स्कीम्स। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली जैसे आपका कुछ डेटा छोटा छोटा डेटा लॉस हो गया है, तो बेसिकली व्हाट इट डज इज इट इज री ट्रांसमिटेड। सो इट इज री ट्रांसमिटेड। अब द नेक्स्ट इज नेटवर्क लेयर। अब डेटा रीट्रांसमिट हो जाता है, और इस तरीके से कोई भी डेटा लॉस नहीं होता। अब अब इसके बाद नेक्स्ट लेयर पे जाता है डेटा, नेक्स्ट लेयर विच इज नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर, अब नेटवर्क लेयर में क्या होता है, दो स्टेप्स फॉलोड होते हैं। एक होता है लॉजिकल एड्रेसिंग ऑफ डेटा, और जो सेकंड स्टेप वो फॉलोड होता है वो होता है डेटा पाथ डिटर्मिनेशन। अब बेसिकली क्या होता है, आपका जो फर्स्टली एवरी डिवाइस हैज इट्स ओन आईपी एड्रेस। तो आपने जो भेजा है, जहां भेजा है उसका भी आईपी एड्रेस होगा, जहां आपने मैसेज भेजा है आपका उसका भी आईपी एड्रेस होगा, आपने जिस डिवाइस से मैसेज भेजा है उसका भी आईपी एड्रेस होगा। तो एवरी डिवाइस हैज इट्स ओन आईपी एड्रेस। तो लॉजिकल एड्रेसिंग में क्या होता है, आपका जो डेटा है, फर्स्टली इसमें आपका जो डेटा है वो कन्वर्ट होता है पैकेट में। कन्वर्ट होता है पैकेट में, उसका मतलब ये है कि आपका जो डेटा है उसमें, ये आपका डेटा है, अब इसमें दो चीजें ऐड हो जाएगी। फर्स्ट जो है वो है सोर्स आईपी, जो आपने जिस डिवाइस से भेजा है उसका आईपी एड्रेस, और एक डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। अब ये दो चीजें इस डेटा में ऐड हो गई, और ये डेटा बन गया एक पैकेट जिसमें ये सारी डिटेल्स है। अब इसके अलावा इसमें और डिटेल्स होती है, जो ये होता है फर्स्ट लॉजिकल एड्रेसिंग। ये लॉजिकल एड्रेसिंग हो गई कि सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी डाल दी। अब हो गया डेटा पाथ डिटर्मिनेशन। पाथ डिटर्मिनेशन एज एन
यह है यूजर और यह है रिसीवर। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए बहुत सारे पाथ है, ऐसे ऐसे भी पाथ है, ऐसे भी पाथ है। तो जो शॉर्टेस्ट और करेक्ट पाथ है वो डेटा उस पे उस पाथ से ट्रांसफर होगा। तो जो करेक्ट पाथ है फ्रॉम फ्रॉम द सोर्स आईपी एड्रेस टू द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ये उस पाथ का या फिर वो पाथ सेट करता है या फिर पाथ सेलेक्ट करता है फ्रॉम द सोर्स आईपी टू द डेस्टिनेशन आईपी। तो आप इसमें क्या हो गया, इस पैकेट में आपके पास हो गया कि आपके पास सोर्स आईपी एड्रेस हो गया, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस हो गया, और पाथ मिल गया आपको कि कौन से पाथ से आपका डेटा ट्रैवल करेगा। बस ये चीजें होती है नेटवर्क लेयर में। नेटवर्क लेयर ये तीन चीजें करता है, आपका डेटा को पैकेट में कन्वर्ट करता है, उस पैकेट में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो होती है सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी और एक पाथ और उसका रूट या फिर रूट बोल लो। अब इसके बाद डेटा नेक्स्ट लेयर में जाता है विच इज डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर, अब बेसिकली डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, आपका अभी आपने लॉजिकल एड्रेसिंग दे दी, अब आपकी फिजिकल एड्रेसिंग होगी। फिजिकल एड्रेसिंग होती है, इसमें क्या होता है, जो बेसिकली डेटा लिंक लेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में होता है। अब आपके आजकल हर डिवाइसेस लैपटॉप्स में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, तो डेटा लिंक लेयर इज प्रेजेंट यूजुअली देयर। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो डेटा लिंक लेयर इज बेसिकली प्रेजेंट ओवर देयर। तो व्हाट इट डज इज, ये आपका एक पैकेट आया है इसके पास, अब इसको ये कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट किस में करता है, फ्रेम्स में। फ्रेम्स में इसने आपके डेटा को कन्वर्ट कर दिया। अब इसने कन्वर्ट कैसे किया, अब जो भी आपका डेटा है, जो आपका पैकेट है, सॉरी, जो आपका पैकेट इसके पास आया है, ये इसमें एक मैक एड्रेस ऐड कर देगा। आपका मैक एड्रेस क्या होता है, आपका जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है उसमें एक 12 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, अल्फा न्यूमेरिक कोड। तो अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है वो आपका मैक एड्रेस होता है। तो इसने इस पैकेट के ऊपर आपका 12 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड भी ऐड कर दिया और इसको फ्रेम्स में कन्वर्ट कर दिया। तो अब इसके बाद बस इसका बस काम यही होता है कि आपके पैकेट को फ्रेम्स में कन्वर्ट करता है, और जो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस का जो ट्रांसफर होता है ये वो करता है। अब इसके बाद फ्रेम्स में ट्रांसफर कर दिया, इसके बाद ये फिजिकल लेयर पे जाता है। फिजिकल लेयर कुछ भी हो सकती है, फिजिकल लेयर एज इन कुड बी अ वायर। और फिजिकल लेयर, बेसिकली फिजिकल लेयर में क्या होता है कि फ्रेम, फर्स्टली जो ये फ्रेम्स है ये कॉम्बिनेशन होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड वंस। तो आपका जो डेटा है जो कंप्यूटर समझती है वो जीरो और वन होता है। तो जब तक ये लास्ट लेयर पे जाता है तो ये फ्रेम्स में कन्वर्ट हो जाता है डेटा। और जो लास्ट लेयर है फिजिकल लेयर, ये बेसिकली क्या होता है, फिजिकल लेयर नोस कि आपके जो दो डिवाइसेस है वो कैसे कनेक्टेड है। सपोजिटली मैं यहाँ बैठा हूँ और या फिर आपका लैपटॉप है वो आपके राउटर से आपके वाईफाई से कनेक्टेड है थ्रू लैन, तो वो वायर्ड कनेक्शन हो गया। या आपका एक डिवाइस और दूसरे डिवाइस वायरलेसली कनेक्टेड है। तो जो फिजिकल लेयर है व्हाट इट डज इज इट इज द फाइनल स्टेप आप फॉर द डेटा। जो आपके डेटा की लेयर है उसकी फाइनल स्टेप है, ये लास्ट लेयर होती है। इसमें जो डेटा होता है वो इसके बाद सीधा सर्वर के पास चले जाता है। नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज बेसिकली इट नोज हाउ योर टू डिवाइसेस आर कनेक्टेड। ओके, अब सपोजिटली आपके जो दो डिवाइस है, सपोजिटली टू डिवाइस कुड बी कनेक्टेड बाय एनी मीन, सपोजिटली ईथरनेट से कनेक्टेड है, ईथरनेट। तो व्हाट इट डज इज इट कन्वर्ट जीरो या फिर वन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। एंड जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं वो ईथरनेट के थ्रू ट्रांसफर होते हैं आपके राउटर पे, राउटर से दूसरे राउटर से फिर दूसरे राउटर पे, एंड एकदम एंड में जाके सर्वर के पास जाते हैं। एंड देन दैट इज हाउ इट इज ट्रांसफर्ड थ्रू ईथरनेट। सपोजिटली आपकी ईथरनेट नहीं है, फाइबर ऑप्टिकल वायर है जो आजकल आती है, फाइबर ऑप्टिकल। तो व्हाट इट डज इज इन दैट केस इट कन्वर्ट्स फ्रेम्स और जीरोस और वंस वाली जो डेटा है इनटू लाइट सिग्नल, इनटू लाइट सिग्नल। अब बेसिकली लाइट सिग्नल क्या होता है, इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डेटा ट्रांसफर
only in which the transfer speed is a bit high. और thirdly वायरलेस, सपोजिटली आप दोनों के फोन वायरलेसली कनेक्टेड, विच इज आजकल everything is wirelessly connected. What it does is it converts frames which is like zeros and ones and into waves. तो ये वेव्स के थ्रू जो डेटा है वो ट्रांसफर करता है. तो दैट इज हाउ योर डेटा इज बीइंग ट्रांसफर्ड. नाउ यू नो अबाउट एवरी लेयर. नाउ व्हाट इट डज इज, सपोजिटली दिस इज योर डिवाइस वन. यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर पे आया डेटा, फिर प्रेजेंटेशन लेयर पे गया, प्रेजेंटेशन लेयर पे गया, फिर सेशन लेयर पे गया. अब सेशन लेयर के बाद ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे. ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद जाएगा नेटवर्क लेयर पे. नेटवर्क लेयर के बाद जाएगा डेटा लिंक लेयर पे. और लास्टली फिजिकल लेयर पे जाएगा. अब जब फिजिकल लेयर पे जाएगा तो ये जो दूसरा रिसीवर है इसके पास भी ये सारे लेयर्स होगी. एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, फिर सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर डेटा लिंक, फिर नेटवर्क, फिर डेटा लिंक और फिर फिजिकल. तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से जाके सीधा एप्लीकेशन लेयर पे चले जाएगा इसकी क्योंकि एप्लीकेशन लेयर इंटरफेस है, तो एप्लीकेशन लेयर पे जाएगा तभी डेटा दिखेगा. तो यहाँ पे इसके फिजिकल लेयर पे आया डेटा और ट्रांसफर हो गया. अब इसके बाद ये अलग अलग वे से ट्रांसफर होके इसके पास गया. अब इसके पास सबसे पहले ये फिजिकल लेयर पे जाएगा. अब बेसिकली यहाँ से उल्टा उल्टा लेयर्स का जो डेटा ट्रांसफर है वो उल्टा चलेगा फ्रॉम फिजिकल टू एप्लीकेशन. जब हम कोई डेटा सेंड करते हैं किसी को तो वो एप्लीकेशन से होता हुआ फिजिकल लेयर पे जाता है और फिर सेंड होता है. और जब हम रिसीव करते हैं तो फिजिकल लेयर से होता हुआ एप्लीकेशन लेयर यानी जो इंटरफेस होता है वहां पे आता है. अब यहाँ पे इसका फिजिकल लेयर हुआ. अब जब हम सेंड कर रहे थे तब जो आपका फिजिकल लेयर था वो बेसिकली क्या कन्वर्ट कर रहा था, वेव्स आ रही थी, जो आपके फ्रेम्स थे उसको वेव्स में कन्वर्ट कर रहा था. अब फिजिकल लेयर पे डेटा आया तो ये बेसिकली अपोजिट करेगा. अब इसने डेटा रिसीव किया है इन द फॉर्म ऑफ, सपोजिटली इसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में डेटा रिसीव किया है या लाइट सिग्नल में किया है या वेव्स में किया है, तो वो उसको फ्रेम्स में कन्वर्ट करेगा. फ्रेम्स यानी जीरोस एंड वंस. तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे डेटा आया आपका फिजिकल लेयर पे, फिर फिजिकल लेयर पहले कन्वर्ट करता था, अब ये वापस उसको उल्टा कन्वर्ट कर रहा है फ्रेम्स में. तो जो आपका डेटा आया है वेव्स, सपोजिटली वायरलेसली आया है, तो उसने वेव्स के फॉर्म में जो डेटा है उसको फिर फ्रेम्स में कन्वर्ट कर दिया विच इज जीरोस एंड वंस. अब इसके बाद डेटा फिजिकल से डेटा लिंक लेयर पे जाएगा. अब जो डेटा लिंक लेयर है इसमें क्या होता था, आपका मैक एड्रेस ऐड होता था. अब इसके बाद इसमें ऐसे उल्टा चल रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ. तो बेसिकली पहले फिजिकल लेयर पे डेटा आया, रिसीव जब करेंगे तब फिजिकल लेयर में डेटा लिंक के पास गया, डेटा लिंक लेयर. अब इसके बाद यहाँ तक जाते जाते इसने जो वेव्स है उसको फ्रेम्स में कन्वर्ट कर दिया. फ्रेम्स यानी जीरोस एंड वंस. अब इसके बाद डेटा लिंक लेयर से पहले वाली जो लेयर है वो है नेटवर्क लेयर. अब नेटवर्क लेयर में क्या होता है, पहले यहाँ पे पैकेट्स में बनता था डेटा और उसके बाद फ्रेम्स में बनता था. तो जब फ्रेम्स में डेटा बना है तो वो पैकेट्स में कन्वर्ट होगा. अब पैकेट्स में कन्वर्ट, क्योंकि जैसे जैसे डेटा बनता था वैसे वैसे डेटा टूटेगा, तो अब नेटवर्क लेयर हो गया, वहां पे डेटा पैकेट्स में बन गया है. अब पैकेट्स में बनने के बाद डेटा क्या होगा, नेटवर्क लेयर के बाद जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे. बेसिकली जो भी ये काम करते थे उसका अपोजिट करेगा. अब पैकेट्स में बनता था और सेगमेंट्स में होता था. अब अलग अलग डेटा यूनिट्स या फिर डेटा यूनिट्स में होता था डेटा. अब ट्रांसपोर्ट लेयर में पहले हम बड़े से डेटा को सेगमेंट्स में करते थे. अब यहाँ पे सेगमेंट्स मिले हैं हमने अलग अलग. अब हम उसको एक डेटा यूनिट में एक डेटा पूरे रॉ डेटा में कन्वर्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर पे. अब ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद जब हम जाएंगे तो जो हम तीन लेयर है वो हमारी ब्राउजर कंट्रोल लेयर है. सेशन सेशन प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन. सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन.
अब बेसिकली क्या हो रहा है, आपका डेटा है सेशन में आया। अब जब आपका फर्स्ट टाइम डेटा आया तो वो सेशन, सपोज आपने google.com या फेसबुक पे लॉगिन किया, तो फर्स्ट टाइम पे तो डेटा आया, इसने लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगा, आपने भेज दिया, और यहाँ पे सेशन स्टोर्ड हो गया है। अब उसके बाद प्रेजेंटेशन के बाद जाएगा ये डेटा। और प्रेजेंटेशन में पहले तीन चीजें होती थी। पहले क्या होता था, कन्वर्ट होता था, इनक्रिप्ट होता इनक्रिप्ट होता था, और कंप्रेस होता था। अब एकदम अपोजिट होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, डिक्रिप्ट होगा आपका डेटा। डिक्रिप्ट यानी अब तो आपके रिसीवर्स के पास आ गया, अब डेटा आपको डिक्रिप्ट चाहिए। अभी तक डेटा क्या था, मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में था, मशीन फॉर्म में था। अब डेटा ह्यूमन फॉर्म में आएगा, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल, जो आप समझ सकते हो। अभी उसने हाई भेजा, हाई 0 1 में कन्वर्ट हो गया था, अब 0 1 से वापस आपके हाई में कन्वर्ट हो जाएगा और डिक्रिप्ट हो जाएगा, और जो कंप्रेस डेटा है वो वापस जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें आ जाएगा। अब जब ये हो गया तो ये फाइनल, ये सब होने के बाद ये आपका फाइनल इंटरफेस पे दिखेगा, जो है आपका डेस्कटॉप, या फिर आपने google.com सर्च किया तो आपके google.com का HTML पेज दिखेगा, आपने फेसबुक सर्च किया तो आपको फेसबुक का होम पेज दिखेगा, आपने व्हाट्सएप पे हाई भेजा और रिप्लाई आया तो आपने हाई भेज दिया तो रिप्लाई में भी आपको हाई दिख जाएगा, जो भी उसका रिप्लाई आया आपके व्हाट्सएप पे। तो जो वो हो गया तो वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आपको दिख गया। तो बेसिकली डेटा जब आप भेजते हो तो एप्लीकेशन से फिजिकल लेयर पे जाता है, और जब आप डेटा रिसीव करते हो तो वो फिजिकल लेयर से डेटा टूटते टूटते वापस ह्यूमन फॉर्म में होते होते एप्लीकेशन लेयर पे जाता है। तो ये जो डेटा की जर्नी है, फ्रॉम एप्लीकेशन टू फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर टू द सर्वर, and from there back to the physical layer, and from physical layer to again the application layer is basically the OSI मॉडल। ये OSI मॉडल होता है डेटा जर्नी, डेटा की जर्नी डिफाइन करता है। डेटा जर्नी या फिर डेटा transfer of data from one point to another and how it receives is basically is done into seven layers, and all these seven layers together is known as OSI model layers. Okay, guys, this is all about OSI layers.